everyone. Online class 6, subject science, chapter 15, part 4. For, how is oxygen in air replaced? हवा में ऑक्सीजन कैसे बदल जाती है? We have just studied that a large number of animals and plants are consuming oxygen from air for respiration. The oxygen of air is also consumed during the burning of fuels by human beings. Even then, all the oxygen of air does not get used up. हमने अभी अध्ययन किया है कि बड़ी संख्या में जानवर और पौधे ऑक्सीजन का सेवन कर रहे हैं। श्वसन के लिए वायु मानव द्वारा ईंधन के जलने के दौरान हवा के ऑक्सीजन का भी सेवन किया जाता है। फिर भी हवा के सभी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है। The oxygen of air being consumed by animals and plants during respiration and in the burning of fuels in constantly being replaced by plant through the process of photosynthesis. In sunlight, plants use carbon dioxide and water to make food. By the process of photosynthesis and produce oxygen gas, plants also consume some of the oxygen for respiration, but they produce much more oxygen than they consume. Thus, plants constantly refill the oxygen gas into air. By the process of photosynthesis, the oxygen produced by plant is used by animal to live. This means that animal depend on plant for getting oxygen gas for breathing. Thus, animals, including human being, cannot live without plant. अब हम कहते हैं श्वसन के दौरान जानवरों और पौधों द्वारा खपत की जा रही हवा की ऑक्सीजन और ईंधन के जलने में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधों द्वारा लगातार प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सूरज की रोशनी में पौधे फोटो संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन गैस पौधे और श्वसन के लिए कुछ ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन वह जितना उपभोग करते हैं उससे कहीं अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस की वायु में लगातार भरते रहते हैं। पौधों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग जानवरों द्वारा जीने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जानवर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार जानवर मनुष्य सहित पौधों के बिना नहीं रह सकते हैं। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट प्लांट कीप on using carbon dioxide gas of air for making food by photosynthesis. Even then, all the carbon dioxide of air does not get used up. We will now explain how the carbon dioxide in air is put back. हमने अभी चर्चा की है कि पौधे भोजन बनाने के लिए हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण फिर भी हवा के सभी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। The carbon dioxide of air being consumed by plants in photosynthesis is constantly being put back into air by the respiration of animals as well as by the burning of fuels by human beings. सदा कैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड या के पीछे से जो डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण के पौधे द्वारा मौन किया जा रहा है, जो लगातार एनिमल और पौधों को श्वसन के लिए साथ साथ प्राणियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। The animals and plants use oxygen from air for respiration and give out carbon dioxide gas. The carbon dioxide gas goes back into air. Similarly, the burning of fuel, wood, coal, kerosene, petrol, diesel, and LPG, while the human beings uses oxygen from air and produces carbon dioxide gas. The carbon dioxide also goes back into air. Thus, the animals constantly put back carbon dioxide gas into air by the process of respiration and burning of fuel. This carbon dioxide is then used by plants for making food by photosynthesis. This means that plants depend on animals for getting carbon dioxide gas. The photosynthesis, so plant cannot
live for long periods without animals. पशु और पौधे श्वसन के लिए हवा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में चली जाती है। इसी तरह मानव द्वारा ईंधन, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को जलाने के में हवा से ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उत्पादन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में वापस चला जाता है। इसी प्रकार जानवर, मानव लगातार श्वसन और के लिए और फ्यूल को जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में यूज छोड़ दिया जाता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्राप्त करने के लिए जानवरों पर भी निर्भर होते हैं, जो पशु के बिना लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। यूजेस ऑफ एयर। हवा का उपयोग। Air is useful of human being in many ways. Some of the important uses of air are given below. कई तरह के इंसानों को हवा देना, हवा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोग दिए गए हैं। Air is used by human beings for breathing. No human being can survive without air. हवा को मनुष्यों द्वारा सांस लेने के लिए यूज किया जाता है और कोई भी इंसान बिना हवा लिए सांस लिए जीवित नहीं रह सकता है। एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड केरोसिन एक्सेट्रा टू मेक फायर. दिस फायर is used by man for cooking food and other heating purposes. No fuels can burn without the oxygen of air. Thus, air is necessary for burning fuel. इस हवा का उपयोग आग बनाने के लिए, जैसे लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल आदि को जलाने के लिए भी किया जाता है। यह आग खाना पकाने के लिए और अन्य ताप प्रयोजन के लिए भी आदमी द्वारा निहित है। कोई भी ईंधन बिना नहीं जल सकता है। Compressed air is used to fill tires of various kinds of vehicles such as bicycles, scooters, cars, buses, trucks, and planes. The air-filled tires make the transportation smoother and easier. अब कंप्रेसर एयर जो कि विभिन्न प्रकार के वाहनों जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, प्लेन के लिए हवा का यूज किया जाता है। हवा से भरे टायर परिवहन को आसान बनाते हैं और उनकी लाइफ भी बढ़ाते हैं। द एयर इज आल्सो यूज्ड फॉर इन्फ्लेटिंग बैलून्स एंड फुटबॉल्स. गुब्बारे और फुटबॉल फुलाने के लिए इसका यूज होता है। एयर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट. कई पौधे के फूल की शांति और पराग के लिए हवा का यूज होता है, क्योंकि जब हवा चलेगी तो उनके बीज ऑफ फ्लावर हवा के द्वारा कहीं और जाएंगे, तो जिससे वो पेड़ वहाँ दूसरी जगह भी उग सकते हैं। ब्लोइंग एयर इज यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल. द वाइंड मिल आर देन यूज टू ड्रॉ वाटर बाय रनिंग पंप्स टू रन फ्लोर मिल्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब इसका उपयोग हवा का उपयोग पवन मिल के ब्लेड को चालू करने के लिए भी किया जाता है। पवन मिल जो पंप चलाकर आटा मिलों में को चलाकर और बिजली पैदा करने के लिए यूज किया जाता है, और जैसे जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा की जा सकती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ यास्ट, परचेस्ड ग्लाइडर्स एंड एरोप्लेन्स. वायु नौकायान, नौकाओं, पैराशूट, ग्लाइडर और हवाई जहाज की आवाजाही में मदद करती है हवा उड़ाने में। एयर हेल्प्स द बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स इन फ्लाइंग. इन फैक्ट बर्ड्स, bats and insects can fly only due to the presence of air. The birds, bats and insects fly by pushing the air downwards and backward with their wings. अब हवा पक्षियों, चमगादड़ों और कीड़ों
में भी मदद करती है। वास्तव में पक्षी, चमगादड़ और कीड़े केवल उड़ सकते हैं। हवा की उपस्थिति के कारण पक्षी जो है चमगादड़ और कीड़े हवा के नीचे की ओर धकेल कर उड़ते हैं और अपने पंखों का उनके पंखों के साथ पीछे करते हैं। Air plays an important role in the water cycle. This is because hot air being lighter rises up and carries the water vapor high up in the sky and helps in bringing rain. Moving air also carries rain clouds from one place to another and helps in bringing rain at the all the places. जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कारण यह है कि गर्म हवा हल्का होना ऊपर उठता है और आकाश में जलवाष्प को ऊपर ले जाता है और बारिश लाने में हमारी मदद करता है। जब हवा चलती है तब हवा में बारिश के बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जाती है और सभी स्थानों पर बारिश लाने में मदद करती है। थैंक यू।